Hello everybody, I am Dr. Abdul Shafi Khan. You are watching my channel where you learn spoken English and personality development and all the linguistic words which are very necessary in your life. If you want to speak fluently, you should learn how to make your sentence, how to form your sentence, and after what is the definition of sentence. If you learn that, the definition of sentence is the placement of words. If we know all type of words and we know it very well, and whenever you know the words and whenever you will know the placement of words, then you will be able to form any here sentence. So I will give you some instructions here how to form your sentence, and after making sentence you will be able to form your sentence, and after forming the sentence you will be able to make your conversation in English. So now first of all we would try to learn here the variation of the words here. What type of words we use in our speaking, this is very important for you. First of all, we should know here about the noun and pronoun. These two words are very necessary in learning English. If you want to know that noun and pronoun, whenever we want to make our sentence in English, we should know the using of noun and using of pronoun here. Okay, and after that we should know the variation of the words here, variation of verbs, isn't it? And after this we will know about the role of object. What is the role of object in our sentence? If you go through the formation of the sentence, you will know what is the meaning of the sentence here. Meaning of the sentence means whenever you use some words with the right placement word shows the meaningful sentence. If you will say that here, there, go away, where, my father, so these are the words, but these are meaningless. Whenever we make these words in our proper placement, then they will show what are you doing, it is the meaningful sentence. Why? Because we have formed the sentence with the manner of placement, isn't it? So it happens here when we make our sentence with the powerful or placement that it shows the meaning of your words. Okay, if you want to make your sentence in proper placement of the words here, you should know the variation of the verbs. It is called the forms. इसको हिंदी में कहा जाता है, forms को कहा जाता है रूप, और अगर हम इसको उर्दू में कहेंगे तो उर्दू में कहेंगे हम इसको शक्लें. ये क्या है? ये शक्लें. काहे की शक्लें हैं? ये फॉर्म वर्ब की शक्लें हैं ये. और ये कितने तरह की होती हैं? ये these are the 5 forms. We should know it. These are the 5 forms. तो सबसे पहले before learning our tenses and before making our sentences, we should know the variation of the verbs here. हमें वाक्य बनाने से पहले या सेंटेंस के फॉर्मेशन के पहले हमें वर्ब के रूप जानना चाहिए, वर्ब की शक्लें जानना चाहिए कि वर्ब आती कितनी तरह से हमारे सामने है. अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू हियर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. तो व्हाट आर द नेम ऑफ ग्रामर? इसके ग्रामेटिकल नेम है. इन 5 फॉर्म्स के क्या है? ग्रामेटिकल नेम है, यानी ग्रामर के नियम है, उनके मुताबिक हम इनको कॉल करेंगे. हम बाद मर्तबा ये बोलते हैं कि ये वर्ब का पहला रूप है, दूसरा रूप है, तीसरा रूप है, ये बोला जाता है. तो ये तो हमने अपनी ज़बान में बोल दिया कि जिनको हम बोलचाल की भाषा कहते हैं. बट व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू यूज इट इन ग्रामर, वी शुड नो द नेम ऑफ ग्रामेटिकल नेम, वी शुड नो इट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज हियर प्रेजेंट टेंस, isn't here? Present tense. Is it number 1? Present tense. I will describe the meaning of the verb here. कि ये जो वर्ब हमारे सामने आ रही हैं, ये अपना रूप कैसे बदलती हैं, माने कैसे बदलती हैं, you will know it. Number 2, do you know? Number 2, past tense. Number 2, past tense, isn't it? And number 3,
नंबर 3 फ्यूचर टेंस। यस इट हैपन्स। यही गलती होती है हमसे कि जब हम वर्ब के फॉर्म की बात करते हैं, तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं और उसके बाद पास्ट टेंस की बात करते हैं, तो अननोइंगली हमारी ज़बान से फ्यूचर टेंस निकल जाता है। वी आर नॉट लर्निंग हेयर अबाउट द टेंसेस, वी आर लर्निंग हेयर अबाउट द फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यू शुड डिफ्रेंशिएट दीज वर्ड्स हेयर। इन वर्ड में आप डिफ्रेंशिएट करिए, तफरीक द वर्ड्स हेयर, कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ये जो आपने बोला ये तो औकात हो गए, जो वक्त को बांटा जाता है, काल जिसको हिंदी में कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन जब हम वर्ब की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की बात कर रहे हैं, तो नंबर 3 में आएगा हमारा क्या? पास्ट पार्टिसिपल, isn't it? It is called the past participle. This is the third form of the verb here. Okay. Number 4. Do you tell me? Yeah. Present continuous. No, it is called the present participle, isn't it? Present participle. It is called the present participle. आज आपको इंशाल्लाह ये चीज़ बिल्कुल नोट कर लें आप कि जो हिंदी में वर्ड होते हैं, एक मैं बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि जैसे हम कहते हैं वर्ब के रूप, राइट, ये हम वर्ब के रूप सीख रहे हैं, यानी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब सीख रहे हैं। हम टेंस के प्रकार नहीं सीख रहे हैं, यानी काइंड्स ऑफ टेंसेस नहीं। पहले हम फॉर्म्स ऑफ द वर्ब सीखेंगे, यानी वर्ब के रूप। पहले हम वर्ब के रूप सीखेंगे, वर्ब के फॉर्म्स सीखेंगे, वर्ब्स की शक्लें सीखेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न द काइंड्स ऑफ टेंसेस। फिर हम टेंस के प्रकार सीखेंगे। तो इनको डिफरेंशिएट करिए आप। वर्ब के फॉर्म में टेंस के रूप को, टेंस के प्रकार को मत मिलाइए। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए आप। मैं यहाँ फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, मैंने काइंड्स की बात नहीं किया हूँ। काइंड्स यानी होता है प्रकार, हिंदी में इसको कहते हैं प्रकार, राइट। तो हम काइंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। फॉर्म का अर्थ होता है रूप, यानी उसकी शक्लें, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी शक्लें कई हैं, मैं तो हूँ। अगर बाय नेम मुझे जाना जाएगा तो मैं जो हूँ डॉक्टर शफी खान मुझे नाम जाना जाएगा, लेकिन मेरी शक्लें कितनी हैं? शक्लें कितनी हैं? बहुत ज़्यादा हैं शक्लें मेरी। किस तरह से है? अगर मैं किसी शॉपकीपर के पास जाऊँ तो मैं क्या हो जाऊँगा? वहाँ पर शॉपर हो जाऊँगा, ख़रीदार होऊंगा वहाँ पर, ठीक है। अपने स्टूडेंट्स के बीच में जाऊँगा तो टीचर हो जाऊँगा, अपने बच्चों के सामने जाऊँगा तो फादर हो जाऊँगा, ठीक है। अपनी अहलिया के सामने खड़े होने की ज़रूरत करूँगा तो हस्बैंड हो जाऊँगा। नहीं तो ये कितनी शक्लें बदल रही हैं मेरी। इसी तरह से शक्लें जो है वो फॉर्म्स वर्ब की भी चेंज होती हैं। और जिसको ये जहन में आ गया, एक बार समझ लिया जिसने कि वर्ब हमारी शक्लें किस तरह से बदलती हैं, और ये तय मानिए कि हर एक टेंस में इसकी शक्लें फिक्स हैं। एक बार अगर हमारे जहन में आ गया तो हमसे ज़िंदगी में कभी टेंस की गलती हो ही नहीं सकती। If we learn it properly and we learn the formation of the verbs. So you first of all you mind it, these are the 5 forms of the verb. इसको हम कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम? 5 forms. 5 forms of the verbs. 5 forms of the verbs. ये है हमारी सबसे पहले। अब मैंने 5वें की बात किया नहीं है अभी आपसे। 5वीं वर्ब कौन सी होंगी? डू यू टेल मी, 5वीं वर्ब कौन सी होगी? 5वीं वर्ब कौन सी होगी? चलो देखते हैं कैसी होगी ना, बाद में निकालते हैं। कुछ सस्पेंस भी तो रहना चाहिए कुछ। चलिए पहले हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर? वर्ब, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम किसी वर्ब का, कि वर्ब का वेरिएशन किस तरह से होता है। पहले देखिएगा आप, प्लीज पे अटेंशन हियर। यहां देखिएगा, जैसे मैं अभी आपको टीच कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं ये प्रेजेंट टेंस में क्या हो गया, ये टीच, ठीक। टीच यानी पढ़ाना, टीच यानी पढ़ाना। अब ये पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, ये TAUGHT, टॉट,
टॉट यानी पढ़ाया। अब हिंदी में इसकी मीनिंग याद रखना, अब तक समझ में आएगा आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये हो गया हमारा पढ़ना, ये क्या हुआ, पढ़ाया, पढ़ाया। पास्ट पार्टिसिपल में हालांकि इसकी स्पेलिंग जो है वो चेंज तो नहीं होगी, है ना, TAUGHT टॉट, लेकिन इसका मीनिंग बदल जाएगी, इसका अर्थ बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पढ़ा चुका। टीच यानी पढ़ाना, टॉट यानी पढ़ाया, फिर से टॉट पास्ट पार्टिसिपल में पढ़ा चुका। अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टीचिंग, राइट। इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ, पढ़ा रहा। ये समझिए आप, ग्रामर में अक्सर लोग समझते हैं या पढ़ाते हैं तो कभी ये बताते नहीं है कि ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हम डायरेक्ट टेंस में चले जाते हैं और वहीं से सारी गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहले हम ये सीखे तो कि भाई क्या कौन सी चीज़ किस काम की है। डॉक्टर ने अगर हमें कोई ट्यूब दिया या कोई मेडिसिन दिया तो पता तो चले कि वो खाने का है कि लगाने का है। वो अगर हमने उसके यूजेस सीख लिए, वर्ड्स के यूज़ अगर हमने सीख लिए तो उसका यूज़ करना, इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हम वर्ब के फॉर्म्स को समझें, ठीक है। तो ये जो हमने अभी इंटरनल चेंज किया, यहाँ पर कुछ में ईडी लगकर चेंज होता है। जैसे आस्क यानी पूछना, आस्क्ड यानी पूछा, फिर पास्ट पार्टिसिपल में आस्क्ड फिर आएगा, लेकिन वहाँ पर मीनिंग बदल जाएगी। क्या हो जाएगी, वो पूछ चुका, आस्किंग पूछ रहा। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके लिए बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें सिर्फ जो है प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म होता है उसमें सिर्फ क्या लगना है, हमें ING लगना है, राइट। ING फॉर्म लग गया मतलब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाया। अब ये ग्रामर के नाम आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट। ये 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हुए। अब ये पहला फॉर्म कौन सा है, इसकी ज़रूरत जब समझ में आती है ना, तो ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस जिसमें हम अक्सर बातें करते हैं, जैसे आपको स्टूडेंट से भी बातें करना हो, सबसे वैल्यूबल होता है प्रेजेंट टेंस। उसके बाद सारे टेंस इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। आओ जाओ, ठीक है ना। इसके बाद फिर पास्ट टेंस में आ जाता है, क्यों नहीं आए, कहाँ गए, राइट। तो इस तरह से 2 चीज़ें होती हैं। अगर आज आपने ये चीज़ क्लियर कर ली, प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को, एंड वेरिएशन ऑफ द वर्ब अगर आपने समझ लिया, तो इंशाल्लाह फिर आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो ये फिर मैंने आपको यहाँ बनाया प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी टीचिंग यानी पढ़ा रहा। तो ये क्या होता है भाई, ये 5वां जो इसका फॉर्म होता है वो होता है सिंगुलर। ये देखिए आप, सिंगुलर नंबर, है ना, सिंगुलर नंबर ऑफ द वर्ब्स, सिंगुलर नंबर ऑफ द वर्ब्स, वर्ब का सिंगुलर नंबर। और वो क्या होगा, वो टीचेस, क्या होगा, वो टीचेस। और इसका मतलब क्या निकलेगा हिंदी में, पढ़ाता है या पढ़ाती है, पढ़ाता है या पढ़ाती है। अब इसको सारी वर्ब जितनी है सब में आप चेक कर लें इसको। जैसे हम लर्न करते हैं, लर्न, लर्नेड, लर्नेड, लर्निंग, लर्न्स। सीखता है, सीखना, सीखना, लर्न, लर्नेड, सीखा। पास्ट पार्टिसिपल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीख चुका, लर्निंग सीख रहा, और लर्न्स सीखता है, राइट, ठीक है। इसके 2 फॉर्म बनते हैं, लर्नेड भी बनता है और लर्नड भी बनता है, LEARNT। तो ये याद रखना है वर्ब का वेरिएशन कैसा होता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ इंटरनल चेंज होते हैं वर्ब में, गिव, गेव, गिविंग, ठीक है। गिव यानी देना, गेव यानी दिया, अब यही रुक जाएंगे हम, दिया। गिवन यानी दे चुका, यानी इट इज़ कंप्लीटेड आवर वर्क। यहाँ पर काम के पूरा होने का एहसास होता है। किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, किसमें, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल में, राइट, पास्ट पार्टिसिपल में काम के पूरा होने का, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में काम के चलते रहने का एहसास होता है, राइट। तो
तो ये हुआ। और दूसरा ये है, ये सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब पढ़ाता टीचर्स। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई आपके। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग आवर टेंसेस, अब मैं आपको जो चीज़ सिखाने वाला हूँ, अब ये सीख लिया आपने, इसमें गलती तो नहीं होगी कभी आपसे कि वर्ब के ये 5 फॉर्म क्या है, ये 5 फॉर्म्स हैं। ये इट इज़ नॉट काइंड्स ऑफ वर्ब, नो, ये वर्ब के प्रकार नहीं है, ये वर्ब के रूप हैं। दीज आर कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। वर्ब का एक आध प्रकार भी लिख के बता दें, चेक हो जाएंगे। वर्ब का फॉर्म मतलब प्रकार, मतलब डू डिड डन, ये भी लिख के बता दो कि ये अलग है, ये अलग है। ये अभी इसमें लिया ना अपन ने, जैसे अब डू यहाँ पर, ये तो ये वर्ब इंटरनल चेंज हुआ, ईडी वाला चेंज वाला बता दिया था। जैसे डू यानी कर, वो सिखाएंगे ना, उसको बाद में देखते हैं कि वो जब हम वहीं तो कन्फ्यूजन पैदा होता है कि उसमें क्या होना है। अब ये चीज़ समझ में आ गई आपके। अब इसके बाद में जो चीज़ हम लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं आपके सामने क्या, नाउन्स और वर्ब में किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करें। लुक हियर, क्या होता है ये नाउन्स और ये क्या होती है वर्ब। अब इसके फ़र्क को अगर आपने समझ लिया तो मतलब ये है कि टेंस आपके समझ में आना ही आना है इंशाल्लाह, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, जैसे मान ली जाए ये मेरे हाथ में क्या है, चौक, अगर और ज़्यादा चौक आ गई तो क्या बोलूँगा मैं फिर, चौक्स, है ना। ये जिसमें आप बैठे हैं ये क्या है, बेंच, बहुत ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएंगे ये, बेंचेस, राइट। आप यहाँ बैठी हैं, गर्ल बोल दें, मान लीजिए गर्ल, बहुत सारी बैठी हैं तो गर्ल्स। तो यहाँ ये मालूम हो रहा है कि जब हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल बनाते हैं तो या तो हम एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं या आईएस लगाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, नाउन की बात पहले कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए नाउन में देखिए आप, हमने कहा यहाँ पर बेबी, तो ये सिंगुलर नंबर हुआ। इसको अगर हम प्लूरल करना चाहें तो क्या होगा, ये बेबी, बेबी, इसमें वाई हटा के क्या लगा दिया हमने, आई एस, मतलब प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस भी लगता है। इसी तरह से हमने बोला काइट, काइट यानी क्या होता है, पतंग, और इसको हमने प्लूरल बनाया तो क्या हो गया, काइट्स हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या लगा, एस लगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी वर्ड्स होंगी जिसमें हमें ई एस लगा कर भी बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए बॉक्स, ठीक है ना, बॉक्स, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बॉक्सेस, तो हमने ई एस लगाया। अब आपके समझ में आया कि जब हम नाउन को प्लूरल करते हैं, है ना, प्लूरल करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, नाउन के साथ एस, ई एस या आई एस लगता है। कब लगता है, नाउन के साथ एस, ई एस या आई एस कब लगता है, जब हम उसको प्लूरल बनाते हैं, यानी सिंगुलर से प्लूरल, वाहिद से जमा, है ना, वाहिद से जमा करेंगे तो एस लगेगा, ई एस लगेगा और आई एस लगेगा। किसमें, किसके साथ, नाउन्स के साथ। किसके साथ, नाउन्स के साथ। ठीक इसका उल्टा वर्ब के साथ होता है। क्लियर हो गया, ठीक इसका उल्टा, वर्ब अपने आप में प्लूरल है, टेक प्लूरल है, अगर इसको आपने टेक्स कहा तो सिंगुलर बन गया। गिव प्लूरल वर्ब है, गिफ्ट्स कहा तो सिंगुलर वर्ब हो गई। बात समझ में आ रही है आपको, क्या कहा मैंने कि नाउन को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हमें उसकी ज़रूरत के हिसाब से एस लगाना होगा, ई एस लगाना होगा या आई एस लगाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। लेकिन ये जो वर्ब है, देखिए आप, वर्ब है, वर्ब में जब कभी भी, वर्ब में जब कभी भी क्या लगेगा, एस लगेगा, ई एस लगेगा या आई एस लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगी। ये जहन कर लेना है। जैसे गिव यानी देना, ठीक है ना, ये वर्ब, ये जो हमारी वर्ब है ये सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में है, प्लूरल में है। तो आपके समझ में आई बात, मैंने क्या कहा, जिस तरह से नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है उसी तरह से वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल होता है। पहली बात समझ में आ गया, जिस तरह से नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है उसी तरह से वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल होता है। फ़र्क इतना है कि नाउन को हमें प्लूरल बनाना पड़ता है, जबकि वर्ब पहले से प्लूरल होती है उसको सिंगुलर बना देते हैं।
राइट। अब ये अगर आपने जहन में रख लिया तो ये कब काम आएगा, जब हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो वहाँ जब हम आपको सिखाएंगे कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है, प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल नंबर की वर्ब आती है, वो आपके जहन में बैठ जाएगा। अभी आपको ये याद रखना है कि जिस तरह से नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, उसी तरह से वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल होता है। ठीक है, फ़र्क इतना है कि नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, वर्ब पहले से प्लूरल होती है, उसको ज़रूरत के मुताबिक एस, ई एस या आई ई एस लगाकर क्या बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे टेक यानी लेना, ठीक है ना, ये सिंगुलर वर्ब हुई, लेकिन जब हम इसको प्लूरल वर्ब हुई, जब हम इसको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेक्स। फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई यानी उड़ना या उड़ाना, ये प्लूरल नंबर हो गया, लेकिन जब हम इसको सिंगुलर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्लाइज, यानी वाई को रिमूव किया, आई ई एस लगाया, तो फ्लाइज यानी उड़ता है, उड़ाता है। बहुत आता है इस तरह से। यस, वो तो बाद में समझाएंगे, वहीं से तो दिक्कत हो जाएगी। ये पहले ये जो मोटा मोटी ये तो समझ लें, वो ले जाना वही है। जो मेन आपको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, जिसकी तरफ में इन्होंने इशारा किया है, वो यही है। वो अच्छों को समझ में नहीं आता। आज भी 10th और 12th के बोर्ड के पेपर उठा ले जाएं आप, किसी भी बोर्ड क्लासेस के इंग्लिश का पेपर, तो उसमें यही आता है, आई डू इट, आई डिड इट या ही डज इट, इसके सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए आता है, और वही गलतियां हो जाती हैं। हम पहुंचेंगे वहीं, लेकिन सबसे पहले ये डिफरेंशिएट होना चाहिए कि हमने आपको समराइज करें, इसको समराइज करें जरा कि हमने आपको क्या क्या बताया है। यस, वी विल लर्न हेयर काइंड्स ऑफ टेंसेस। देयर आर 3 types of main tenses here. Number 1 present tense, number 2 past tense, and number 3 you can say now future tense, right? It is called the future tense. Future tense. And before learning that, और एक ये चीज़ और, these are the 4 parts, dividing parts of the tense. Number 1 definite or simple. Number 2 continuous. Will you tell me the spelling of continuous? Anybody? Yes? What? No. Tell me the spelling here. Yes, here is continuous, N-U-O-U-S, continuous tense. And number 3 indefinite tense or simple continuous perfect. Number 3 perfect. And number 4 perfect continuous. Yes, please don't commit mistakes in this kind of writing here. So these are the main tense, present tense, past tense, and no doubt we will say here future tense. These are the kinds of tenses, and these are the divided part. इनको इतने भागों में, इतने हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है, बांटा गया है। वो है इंडेफिनिट और सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इनके पढ़ने का तरीका सुन लीजिए, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। अब ये तो कभी प्रेजेंट टेंस का कोई सिंपल सेंटेंस टेंसेस में तो होता नहीं है, जब तक कि इन तीनों मेन टेंसेस को इन डिवाइडेड पार्ट्स में ना मिलाया जाए। ठीक है, तो नंबर पहला हम मिलाएंगे, प्रेजेंट टेंस को मिलाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और यानी या सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब हम सिंपल कहेंगे तो सिंपल को पहले कहना होगा, और इंडेफिनिट कहते हैं तो प्रेजेंट के बाद कहते हैं, ये कहने का तरीका है। तो क्या बोलेंगे हम इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और यानी या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम थिंग हैपन विद ऑल दीज 2 sentences. पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलें या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हर एक के 4 हुए, 4 प्रेजेंट के हुए, 4 पास्ट के हुए और 4 फ्यूचर के। तो टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने हुए हमारे, 12। तो इट इज 12 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये बैकबोन है, इसके बगैर हमारे ग्रामर कंप्लीट नहीं होगी। ये 12 तरह के सेंटेंसेस जो हैं ये हमें सीखने होंगे।
इज इट राइट? तो लर्न इट प्रॉपरली विद द सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी वही मैंने आपसे बताया कि सिलसिले से सीखिए, वन बाई उसको ओवर जंप नहीं करना है। तो इसको लर्न कर लें हम। ये 12 तरह के हमारे सेंटेंसेस होते हैं हमारे। ये इट इज़ कॉल्ड द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। शब्दों की जमावट ही वाक्य कहलाती है, ये याद रखें आप। प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, अगर वो सीक्वेंस में होगा तो वो मीनिंगफुल होगा, अगर वो सीक्वेंस में नहीं है तो मीनिंगफुल नहीं होगा। चाहे हम कितने ही वर्ड्स अपने हम अपनी ज़बान से कितने ही वर्ड्स बोल दें, अगर वो प्लेसमेंट नहीं है, प्रॉपर प्लेसमेंट, तो वो मीनिंगफुल नहीं होता। मीनिंगफुल सेंटेंस होने के लिए सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट का से मुराद यहाँ पर क्या है? करता है, ठीक है ना। करने वाला जो काम करता है वो है गया यहाँ पर सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आती है? वर्ब्स आती है, और इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये सारे सेंटेंसेस का प्लेसमेंट है, ठीक है। अब ये सिंपल प्रेजेंट में तो इतना ही होगा, और सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में बाकी के जो हमारे 10 सेंटेंसेस रहेंगे उनके बीच में यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब ज़रूर आएगी। कई बार 1 आएगी और कई बार 2 आएगी। बस इसके बाद में यही जो हमारा फॉर्मूला है वो जो मैंने आपको बताया कि सारे सेंटेंसेस हमारे इसी सीक्वेंस में बनते हैं। अब लर्निंग प्रोसेस क्या है? सीखना क्या है? हमें सीखना ये है कि किस टेंस में कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आती है और कौन सी वर्ब आती है। तो वर्ब भी फिक्स है। अगर परफेक्ट नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है? तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रामर के नाम में? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, वो आएगा। परफेक्ट नाम अगर टेंस में आया तो वर्ब का क्या आएगा? थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस नाम आ रहा है टेंस में तो क्या आना ही आना है? वर्ब में आईएनजी लगना ही है, ठीक है ना। तो ये हमारी एक प्रॉपर पहचान हो गई इसमें। चलिए अब हम इसको देखते हैं। पहला नंबर जो देखते हैं प्रेजेंट, तो ये सबके लिए यही सीक्वेंस है, यानी सबके साथ में सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जो भी इसको नाम दे दें आप, एक ही चीज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इसको और ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। इसके पास वर्ब होगी लेकिन वर्ब के फॉर्म डिफरेंट होंगे, जो हमने आपको 5 बताए हैं, और इसके बाद में नो डाउट ऑब्जेक्ट होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका दूसरा नाम क्या है? या अंग्रेजी में लिखें और सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होगा भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए अब इसके बाद में इसकी पहचान होना चाहिए कि इसकी सबसे पहले पहचान क्या है। हर एक टेंस में जो हिंदी के जो सेंटेंस हमारे अदा किए जाते हैं उन सब की एक डिफरेंट पहचान है। वो क्या है? अगर सेंटेंस के हिंदी के वाक्य के आखिर में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते हैं, या ते हो, ता हूँ, ता, तो वो क्या होगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है ना। जैसे मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, अब ये ता हूँ पे जोर दीजिएगा आप। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, वह अंग्रेजी सीखता है, वे अंग्रेजी सीखते हैं। तो बस इसी में रहना है, इक्तिफा करना है, इससे आगे पीछे नहीं। सेंटेंस की प्रकृति या नेचर यही है। ता हूँ, ता है, ती है, ते हो, इससे ज़्यादा सेंटेंस यहाँ पर नहीं हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ। मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ, ये आ गया यहाँ पर, मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ। कई बार हिंदी का जो सेंटेंस है ना वो खुद बता देता है कि मैं कौन से टेंस में हूँ। आपकी पहचानने वाली नज़रें और समझ होना चाहिए। तो पहचान हो गई। हाँ आया है तो प्रेजेंट है, कितनी अच्छी पहचान है, देखिए आप। हाँ आया है तो है, आया ना है, तो क्या है? ये प्रेजेंट है, नो डाउट। और ता ती ते आता है तो समझ लीजिए कि वो इंडेफिनिट या सिंपल है। तो इससे समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सेंटेंस खुद बताता है कि मैं किस टेंस में हूँ। सेंटेंस खुद बताता है कि मैं किस टेंस में। पहचान हो गई यहाँ पर। हाँ आया है, हाँ आया है तो प्रेजेंट, ताती ते इंडेफिनिट, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अंग्रेजी, मैं के लिए क्या आ गया यहाँ पर? आई,
ठीक है ना। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पर, ना ये सिंगुलर है ना प्लूरल है। आई को हमेशा याद रखिएगा, आप स्टूडेंट्स को भी बताते हैं तो आई की मीनिंग अगर मैं निकल रही है, आई की मीनिंग अगर क्या निकल रही है, मैं, तो वो सेंटेंस के आखिर में आए, बीच में आए, सेंटर में आए, कहीं भी आए, स्टार्टिंग में आए, वो हमेशा कैपिटल फॉर्म में ही होगा। स्मॉल फॉर्म में आई को कभी नहीं लिखा जाता, ये याद रखें आप। चाहे वो स्टार्टिंग में हो, बिगिनिंग में हो, एंडिंग में हो, मिडिल ऑफ द सेंटेंस हो, अगर उसकी मीनिंग क्या निकल रही है, मैं, तो आप उसको हमेशा कैपिटल फॉर्म में ही लिखना है। तो यहाँ पर हुआ आई, और सीखने के लिए हम क्या लेते हैं, लर्न, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंग्लिश। आई लर्न इंग्लिश। अब यहाँ से सेंटेंस को आगे बढ़ाते चले, जितने भी प्लूरल होंगे, तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर की वर्ब। यहाँ जो हमने सीखा था ना, वो यहाँ काम आ रहा है। आज अगर आपके जहन में बैठ गई बात, तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट पहले लिखता हूँ मैं, देखिए आप, आई की तो छोड़ दिया हमने यहाँ पर, अब लिखा मैंने ही, फिर मैंने लिखा शी, है ना, फिर लिखा मैंने जैद, ये भी सिंगुलर नंबर नाम है, ही, शी और जैद, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पर लिखा, तो ही के साथ क्या आएगा, ये ही मतलब क्या होता है, वह है। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है ना, घबराए ना, सिंगुलर है, ही मतलब एक ही हुआ ना। और सिंगुलर प्लूरल की क्या है, जो एक है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल, है ना, वाहिद जमा समझते हैं। तो ही लर्न्स, लग गया, ही लर्न्स इंग्लिश। अब कोई हमें कहे कि ही लर्न होता है, तो क्या मानेंगे हम, मानेंगे क्या, मानेंगे क्या, मानेंगे क्या, नहीं होंगे। अब उसके लिए क्या है, थोड़ा सा एक वो भी करो आप, सुबह सुबह कुछ पढ़ते हैं क्या, गिन विन के 100 बार पढ़ो शाम को और 100 बार पढ़ो सुबह, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला है, क्या, कि सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट में सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है। कितनी बार पढ़ना रेशियो इसको, सुबह 100 बार, और शाम को फिर सोने के पहले 100 टाइम्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल नंबर की वर्ब। तो ये हुआ ही लर्न्स इंग्लिश होगा। अब कभी गलती तो नहीं करेंगे इसमें, ही के साथ लर्न कभी नहीं लिखेंगे, लर्न से ही लिखेंगे। शी लर्न्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखता है, वह अंग्रेजी सीखती है, जैद अंग्रेजी सीखता है, हो गया। अ बॉय लर्न इंग्लिश होगा कि लर्न्स इंग्लिश होगा, अ बॉय, अ बॉय, अ बॉय क्या होगा, क्या होगा, लर्न होगा कि लर्न्स होगा, लर्न्स होगा, कंफर्म, क्योंकि सिंगुलर नंबर है ना, अ बॉय तो एक ही हुआ कि नहीं हुआ, तो लर्न हुआ ना। ये प्रैक्टिस, है ना, ये प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस क्या है भाई, ये देखिए, ये नेचुरल है। कुछ खुदादाद सलाहियतें इंसान के अंदर जो पैदा हुई है ना, वो उसको नॉर्म्स को फॉलो करो आप। दुनिया में कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई बेवकूफ़ नहीं होता, सारे लोग एक से होते हैं। डिपेंड करता है आपकी क्यूरियोसिटी पर, आपके तजस्सुस पर, कितनी सीखने के जज्बात आपके अंदर है। इट डिपेंड्स ऑन योर लर्निंग, ठीक है ना। तो इसको क्या है, एंड आफ्टर लर्निंग मेक प्रैक्टिस एट होम। लर्निंग के बाद, करने के बाद क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, घर पर जाकर प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिसिंग यू विल नॉट लर्न इट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाएंगे नेचुरली, ठीक है ना। उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, सुनाते। चलिए देखिए, अब यहाँ पर आई लर्न इंग्लिश। अब कोई भी सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस सीख रहे थे हम। पॉजिटिव मतलब होता है मुस्बत, सकारात्मक, जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, और उर्दू में बोलते हैं चलो सुन तो लिया मैंने, क्या बोला, मुस्बत ही बोलते हैं ना, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, आई लर्न इंग्लिश। अब आप जहन में रखिए आप कि हर एक टेंस में, क्या, हर एक टेंस में सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हर एक टेंस में सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए अलग अलग
ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डस का यूज किया जाता है, डू और डस का। चलिए अब देखें इसको। अब यहां पर क्या हो गया, दो ऑक्सिलरी वर्ब हैं, डू और डज। सिर्फ दो टेंस ऐसे भी हैं जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती, बाकी सबके साथ ऑक्सिलरी वर्ब पहले से होती है, तो वहां सिर्फ नॉट लगा दो, नेगेटिव बन जाता है, कोई टेंशन नहीं रहता। सिर्फ टेंशन क्रिएट करते हैं दो टेंस, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इनके पॉजिटिव सेंटेंस के साथ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती। यहां है क्या ऑक्सिलरी वर्ब है क्या? नहीं है। आई लर्न इंग्लिश, इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव सेंटेंस। ये फुल स्टॉप लगाया हमने, पॉजिटिव सेंटेंस ये हमारा मुस्बित जुमला, मुस्बत जुमला है, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंटेंस। और ये बॉयज लर्न इंग्लिश, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हम आई लर्न इंग्लिश को चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डू और डस के साथ हमको क्या लगाना है, नॉट। अंग्रेजी में कोई भी सेंटेंस नेगेटिव नॉट के बगैर नहीं बनता, और ये नॉट का प्लेसमेंट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है। मैंने आपसे कहा ना कि अंग्रेजी में ये सबसे अच्छी बात है कि ये सेंटेंस नहीं है सिवाय इसके कि प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स नॉट की जगह मुकर्रर है। कहाँ? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, यस, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। और दो सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होती, और वो कौन कौन से हैं? वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। वेरी गुड, ठीक है ना। तो उसमें हमें लगाना होगा, तो हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, डू और डज। अब यहाँ अगर आप समझ को अपनी डेवलप करेंगे ना तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। वो क्या क्लियर हो जाएगा आपको कि अगर वर्ब में एस है, वर्ब में एस है तो क्या लगाओ, डज नॉट लगाओ, और वर्ब में एस नहीं है तो क्या लगाओ, डू नॉट। सवाल जवाब मिल गया आपको। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे पास, वर्ब में एस है क्या, यहाँ पर नहीं है, तो सेंटेंस क्या होगा यहाँ पर, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है ना। आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। इसके शॉर्ट फॉर्म को भी पढ़ सकते हैं, डोंट, डजंट, वांट, शॉन्ट, वेरेंट, हैजेंट, हैडेंट। कई बार इंशाल्लाह एक आध बार क्लास लेंगे तो जितने भी शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो सब की मीनिंग हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, और वो कैसे बनते हैं वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये कितना हुआ हमारा, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ, मैं अंग्रेज़ी नहीं सीखता हूँ। और मैंने आपसे कहा ना कि सारे फार्मूले ऐसे ही करेंगे, अब चाहे टेंस कोई भी आ जाए, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड नहीं चेंज होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, ये हमको देना है। डू आएगा नहीं बोलना, क्या बोलना है, हेल्पिंग वर्ब आएगा। नॉट की जगह कहाँ होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। उसके बाद क्या आती है, वर्ब आती है, चाहे वर्ब का फॉर्म कोई भी हो। और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट कोई भी हो। दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। तो मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं। अब इसी तरह से होता कि जैसे मान लो जैद लर्न्स इंग्लिश, क्या होता, जैद लर्न्स इंग्लिश, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनता हमारा, जैद डज नॉट लर्न इंग्लिश। जब हमने डज लगा दिया तो वर्ब से एस को हमें रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। दैट इज द सिंपल फार्मूला हियर, इजंट इट। तो इंशाल्लाह इसमें कभी गलती आपसे नहीं होगी। तो ये सेंटेंस हमने यहाँ पर देखते हैं, आपको देखिए, जैद, ये सिंगुलर नंबर है, एक ही है, तो इसके साथ वर्ब में एस लगेगा, जैद लर्न्स इंग्लिश हुआ यहाँ पर, जैद लर्न्स इंग्लिश। तो इसका हमने बनाया नेगेटिव सेंटेंस, क्या बनाया यहाँ पर, जैद डज नॉट लर्न इंग्लिश। ये हुआ जैद डज नॉट लर्न इंग्लिश। हम बच्चों को समझाने के लिए कह सकते हैं कि भाई इसका एस हमने डू को दे दिया तो ये डज बन गया, ठीक है ना। तो सारे सेंटेंस जो हैं ये सिखाएं प्लेसमेंट कि हमेशा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आती है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब आती है। ये हर एक टेंस में इनकी वर्ब के फॉर्म बदलते चले जाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब बदलती चली जाएगी, लेकिन इनकी जगह चेंज नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड, और यही टेंस है। अगर एक बार हमने प्लेसमेंट को सीख लिया तो इंशाल्लाह हमसे गलती नहीं होगी। अब यही सीख लें आप
नेगेटिव के इंटरोगेटिव बनाना कितना आसान है। जब कभी भी किसी सेंटेंस को हमें इंटरोगेटिव बनाया जाता है या प्रश्नवाचक बनाया जाता है या सवालिया जुमला बनाया जाता है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब को सामने रखते हैं। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, डू आई लर्न इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, दैट इज द प्लेसमेंट। इसी तरह से हो जाएगा जैद का, डज जैद लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही है प्लेसमेंट? बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये इसकी प्रैक्टिस करें। देखिए मैंने आपसे कहा कि गो थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस कहता है आफ्टर लर्निंग मेक प्रैक्टिस एट होम, इंशाल्लाह यू विल नेवर फॉरगेट इट। कभी भूल नहीं सकते, यू कांट बी फॉरगेट इट, आप कभी नहीं भूल सकते इसको। आफ्टर लर्निंग दैट इफ़ यू मेक प्रैक्टिस एट होम फ्रिक्वेंटली, बार बार उसको मश्क करने की ज़रूरत है, उसको अभ्यास करने की ज़रूरत है, उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितनी एक्सरसाइज हम रिमूवल करेंगे, फ्रिक्वेंटली करेंगे, उतना जल्दी आप सीखेंगे, है ना। तो ये हो गया यहाँ पर। अब इसी में नेगेटिव इंटरोगेटिव बनेगा, तो क्या बनेगा, डज जैद नॉट, यानी नॉट की पोजीशन क्या होगी अब, सब्जेक्ट के बाद। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बन गया सेंटेंस। ये 5 तरह के सेंटेंस सिखाते हैं हम, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, और उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड जो आएगा वो ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आएगा। जैसे जैद अंग्रेजी क्यों सीखता है, जैद अंग्रेजी क्यों सीखता है, तो क्यों के लिए अंग्रेजी में वर्ड क्या आता है, व्हाई। अब इसके बाद क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाई डज जैद लर्न इंग्लिश। ठीक है, तुम जबलपुर क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू जबलपुर। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं हम इस तरह के सेंटेंस में, है ना। माँ मुझे क्यों बुलाती है, माँ मुझे क्यों बुलाती है, वाई डज, अब माई मदर सिंगुलर नंबर हुआ ना, वाई डज माई मदर कॉल मी, मेरी माँ मुझे कब बुलाती है, When does my mother call me? मेरी माँ मुझे कैसे बुलाती है, How does my mother call me? तुम बाजार कैसे जाते हो, How do you go to market? आप बाजार कब जाते हैं, When इसमें मुंह खोलना है पूरा, When do you go to market? आप बाजार कितने बजे जाते हैं, At what time? At what time do you go to the market? Is it right? तो you can form the, आप बाजार कितने बार जाते हैं, तो कितनी बार का वर्ड आया, ये भी हम ऑक्सिलरी वर्ब के पहले जोड़ेंगे। How many times? How many times do you go to market? How many times do you go to market? जैद बाजार कितनी बार जाता है, How many times does जैद गो टू मार्केट। क्योंकि जैद आया तो यहाँ पर वो सिंगुलर नंबर हो गया, तो हाउ मेनी टाइम्स क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद में वर्ब को यूज़ करके हमने सेंटेंस को बना लिया। तो अपने मन से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे एंड डेफिनेटली यू विल लर्न, मेक प्रैक्टिस एट होम एंड आफ्टर लर्निंग दिस एंड इट क्रिएट्स द फार्मूला ऑफ द सेंटेंस ऑल हियर। I will give you the real formula of the present indefinite tense. If you will go to the formula here, I will give you a formula of the sentence and the placement of sentence. It is called the subject plus verb, इसके साथ हमारा SES या IES होगा, उसके बाद होगा हमारा object. That is the positive sentence. Negative sentence में क्या होगा, subject plus do oblique does. It is called the, it is slanting line, it is called the oblique. Oblique means yeah. तो subject plus do oblique does plus verb का first form plus object. It is called the negative sentence of here. No, here is the negative sentence. सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। और इंटरोगेटिव सेंटेंस पे क्या होगा, डू और डज को हम क्या करेंगे, सामने लेकर आएंगे, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा प्लस क्वेश्चन वर्ड होगा। अब हमको इसमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ना है तो कहाँ जोड़ देंगे, पहले ही हम ऐड कर देंगे। और नेगेटिव
नेगेटिव देन इंटरोगेटिव, यानी नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव भी हो तो क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो एक चौथा फॉर्मूला हमारा यहाँ भी और भी क्रिएट हो जाएगा। तो यू कैन फॉर्म दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड आफ्टर लर्निंग दैट व्हेनेवर यू वांट टू मेक योर कन्वर्सेशन इन इंग्लिश एंड you want to raise your questions in English, you have to make this kind of formula. It is belongs to the present indefinite tense or future simple present tense, and note down this kind of sentences here. This is the formula here. First of all, you will put here subject, and after that you will put here do oblique does plus not plus verb का first form and object, and the variety of the sentence, it is the positive, it is called the positive, and that is the negative, and it is called the interrogative sentence. So please note down in your copy and make practice at home. You watched my channel. Thank you very much, and before ending please subscribe my channel. Thank you very much.